میں شکر گزار ہوں گریس نیٹ ورک کے لیے جنہوں نے ایک زبردست پروگرام کو ترتیب دیا تاکہ خدا کے خادموں کے وسیلہ سے صلیبی کلمات کو جو ہے وہ ہم سیکھ سکیں اور جان سکیں۔ آئیں ہم خدا کے اس کلمے کی طرف رجوع کریں۔ مجھے جو اس خدمت کو دیا گیا وہ مسیح کے صلیبی کلمات میں سے 5واں کلمہ ہے۔ آئیں ہم اسے سیکھیں۔ یسوع المسیح کے فرمائے گئے صلیبی کلمات میں سے 5واں کلمہ جو جسمانی دکھ کا کلمہ بھی کہلاتا ہے، اور اس کی نوعیت جسمانی ضرورت اور اس کا وقت تقریباً 2:30 بجے ہے۔ یاد رکھیں یسوع مسیح کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک کی حالت 2 کامل چیزوں کا مجموعہ رہی ہے، ایک کامل خدا ہونا یسوع کا اور دوسرا کامل انسان ہونا۔ آئیں بائبل مقدس میں سے اس حوالے کو ہم تلاوت کریں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب 28ویں آیت میں اس طرح لکھا ہے، اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو، تو کہا میں پیاسا ہوں۔ آمین۔ یسوع مسیح کے دکھ، اس کی تکالیف، المناک واقعات کا آغاز، اس کی دکھی سارا سلسلہ جو تھا اس کا آغاز گتسمنی باغ ہی سے ہو چکا تھا۔ یسوع مسیح نے یہی سبب ہے کہ وہاں پر بار بار اپنے شاگردوں سے کہا کہ میرے ساتھ جاگو اور دعا کرو، اور نہایت جان کنی کی حالت میں دل سوزی کے ساتھ وہ دعا کرتا رہا اور اپنے باپ کے ساتھ گفتگو میں رہا، بات کرتا رہا، اور یسوع مسیح کی اسی حالت کے پیش نظر آسمان سے فرشتے آ کر اسے تقویت دیتے رہے۔ یسوع مسیح کی دکھ، کرب اور تکلیف کی اذیت کا اندازہ ہم اس بات سے کر سکتے ہیں کہ اس کا پسینہ باغ گتسمنی میں دعا کے دوران غمگینی پریشانی کی حالت میں گویا خون کی بڑی بڑی بوندیں بن کر ٹپکتا تھا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اس بات کے لیے کس قدر کرب، دل سوزی اور تکلیف کو محسوس کر رہا تھا۔ یسوع مسیح کی گرفتاری باغ گتسمنی ہی میں ہوئی، اور یہ تقریباً کہا جاتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ یہ رات 11 بجے کا وقت تھا۔ یسوع مسیح کی گرفتاری کے بعد اسے رات بھر مختلف عدالتوں میں گھسیٹتے رہے، مختلف مقدمات اس پر دائر اور درج کرتے رہے، رومی عدالتوں میں جہاں پر اس کے بادشاہ ہونے کا دعوے کو دہرایا گیا اور اسے گناہ کے زمرے میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی، اور مذہبی عدالتوں میں جہاں اسے خدا ہونے کے الزامات لگائے گئے کہ یہ خود کو خدا کے برابر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے، اور اس قسم کے مختلف مقدمات اس پر درج کیے گئے، الزامات لگائے گئے، تہمتیں دری گئیں، اور اسے کسی بھی طریقے سے چاہتے رہے کہ سخت سے سخت سزائیں دی جائے، حالانکہ اس پر کوئی بھی الزام ثابت نہ کر سکے، تو بھی اسے یہ سزا ملی کہ اسے کوڑے مارے جائیں، 1 کم 40 کوڑے۔ اگر میں ان کوڑوں کی تفصیل میں جاؤں تو کہا جاتا ہے کہ اس کوڑے کی شاخوں پر لوہے کے پیسز، ہڈی کے پیسز اور کانچ کے پیسز لگائے گئے، اور جب وہ یسوع المسیح کی کمر پر اس کوڑے کو برساتے تو وہ لپٹ جاتا اس سے، اور جب اسے واپس زور کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ کھینچتے تو وہ اس کے جسم سے گوشت کو اور مختلف گوشت کے پیسز کو کھینچ کر ہوا میں اچھال دیتا۔ اس قدر وہ بڑے بڑے زخموں کا اور اس کے
जिस्म पर बड़ी बड़ी तकलीफ का और ज़ख्मों का बाइस बना, जिसकी मंजर कशी बड़ी खूबसूरती के साथ यसाया ने 53 बाब में कही कि वो मर्दे गमनाक, रंज का आशना और मरदूद, और उसके कोई सूरत ना रही, उसकी कोई शक्ल ना रही कि हम उस पर निगाह करें, वो रंज का आशना था। इस तौर से यसु मसीह को नहायत तकलीफ और अजियत के उन लम्हात को अपनी ज़िंदगी में दो चार होना पड़ा, और खून नहायत तेज़ी के साथ उसके बदन से रसना और बहना जारी और सारी था। इसके बाद एक भारी सलीब को गलगत्ता यानी खोपड़ी के मकाम पर ले जाने के लिए उसे दिया गया। 39 कोड़ों के बाद चलना ही नामुमकिन, कठिन और तकलीफदा था, लेकिन उस भारी सलीब को, जिसके लिए रिसर्च बताती है कि उसका कुल वज़न शायद 165 किलोग्राम था, और जो सलीब का हिस्सा यसु मसीह को उठाने को दिया गया उसका वज़न 32 से 41 किलोग्राम बताते हैं कि तकरीबन था। और कोड़ों की मार, तमाचों, मुक्कों, थप्पड़ों, दाढ़ी के नोचे जाने के बाद, सर पर कांटों का ताज डाले जाने के बाद, रात भर घसीटने और मुक्का तानाजनी करने के बाद उस सलीब को गलगत्ता की पहाड़ी पर इस हालत में ले जाना ना सिर्फ नामुमकिन था बल्कि नहायत करब अंगेज और तकलीफ का भी बायस था। लेकिन मेरे और आपके अल मसीहा ने इस काम को किया, और मसलूबियत के वक्त जब उसके हाथों और पाँव में कील जड़कर, उल्मा इस बात को बयान करते हैं, तारीख इस बात को बयान करती है कि जिन कीलों को यीशु के हाथों और पाँव में लगाया गया वो जंग आलूद थे। और जो लोग मेडिकल साइंस से वाकिफ हों वो जानते हैं इस बात को कि जंग आलूद चीज़ जब इंसान के खून में शामिल हो जाए, जब उसकी नसों में उसकी रसाई हो जाए, तो वो सोजिश का, स्वेलिंग का और ख़तरनाक तरीन इन्फेक्शन का और नहायत करब अंगेज पेन का बायस बनती है। यसु मसीह के साथ भी उन जंग आलूद कीलों के इन्फेक्शन के बायस उसकी दर्द, उसके कर्ब, उसकी तकलीफ में नहायत अजाफा हो चुका था, और उसे सलीब पर लटकाकर उस सलीब को खड़ा कर दिया गया। याद रखिए इस बात को कि सारे वाक़ये के साथ तकरीबन कहा जाता है उल्मा के मुताबिक के 16 से 18 घंटे बीत चुके हैं यसु मसीह को गतसेमनी से पकड़े सलीब पर लाए हुए, और सलीब पर लटके हुए तकरीबन 6 घंटे गुजरने वाले हैं। और इस हालत में एक कामिल इंसान होने के नाते ये मुंह से अदा होना, निकलना लाजिम और ज़रूरी था कि मैं प्यासा हूँ। कभी कभी मेरे मुख्तलिफ खादमुल दीन बहन भाई इस बात को बयान करते हैं कि वो तो समंदरों को बनाने वाला, वो तो नदियों को बनाने वाला, तूफानों को थमाने वाला, और सामरी औरत से कहने वाला कि अगर तू मुझे जानती तो मुझसे पानी मांगती, मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। उसे पानी की प्यास नहीं थी और वो हमारी जिंदगियों का प्यासा था। मैं समझती हूँ बाइबल मुकद्दस की तालीम को 2 तरीकों से बयान किया जाता है, एक अलगोरिकल तरीके के साथ और दूसरा लिटरली तरीके के साथ। अलगोरिकल तरीके के साथ यानी किसी चीज़ को मिसाल देकर मिजाजी मायनों में या तमसीली मायनों में हर एक बात को हम बयान नहीं कर सकते। बराह मेहरबानी इस बात से भी आप इज्तनाब बरतें और हर बात को अलगोरिकल मेथड के साथ बयान करने से एहतियात करें।
यहां पर यीशु मसीह सलीब पर जिस प्यास की बात कर रहे हैं वो वाकई उसकी जिस्मानी प्यास है, और वो कामिल इंसान होने के सबब से अपनी उस प्यास की शिद्दत को बयान कर रहा है। और यीशु मसीह ने एक और पहलू की तरफ मैं आपकी नज़र लेकर जाना चाहती हूँ, और वो ये है कि यूहन्ना रसूल ने इस बात को अपने अंजीली बयान में कलमबंद किया कि वो कामिल इंसान है। यही सबब है कि इस कलमा को रकम किया गया कि मैं प्यासा हूँ। और ये अल्फाज यीशु मसीह के मुँह मुबारक से उस वक्त अदा हुए जब उसने जान लिया कि तमाम बातें हो चुकी, कफ़ारे का काम हो चुका, तमाम चीज़ें मुकम्मल हैं। तो उसने इस बात को भी जो नविश्तों में उसके बारे में लिखी हुई थी कहना पसंद किया। याद रखें, यीशु मसीह कामिल इंसान है, और बाइबल इस बात को अनाजीले मुबारका इस तालीम को, उसके बशर होने को साबित करती हैं और इसके मुख्तलिफ शवाहिद को भी पेश करती हैं। उसकी पैदाइश पर उसका कपड़े में लपेटा जाना उसके बशर होने का सबूत है, उसका रोना उसके बशर होने का सबूत है, उसका आंसू बहाना उसके बशर होने का सबूत है, उसका सोना और थकना उसके बशर होने का सबूत है, और उसका रोना और उसका दुआ करना, उसका चलाना और उसका सलीब पर पानी मांगना कि मैं प्यासा हूँ, इस बात की कामिल दलील और अलामत है कि वो वाकई एक कामिल खुदा होने के साथ साथ एक कामिल इंसान भी है। जिस दौर में इस अंजील को रकम किया गया, याद रखिया गया कि बहुत सारे ऐसी बिदात वजूद में आ चुकी थी जिनका ये मानना, कहना और तालीम देना था कि यीशु अल मसीह कोई इंसान नहीं, ये बशर नहीं, बल्कि कामिल खुदा है, और इसको मार, इसको प्यास, इसको भूख लगना ये मुमकिन नहीं है। इस बात को मुझे और आपको बाइबल मुकद्दस ये तालीम देकर सिखाती है कि खुदावंद यीशु मसीह कामिल इंसान भी हैं। अगर वो कामिल इंसान ना होते तो हमारा कामिल कुफारा भी मुमकिन नहीं था। यीशु मसीह का ये कहना कि मैं प्यासा हूँ, बाइबल मुकद्दस पहले से नबियों के वसीला से इसके ताल्लुक से कई वाक़यात को पेशन गोई और नविश्तों के तौर पर बयान कर चुकी थी। ज़बूर 22 उसकी 15वीं आयत में लिखा है, मेरी कुव्वत ठीकरे की मानित खुश्क हो गई और मेरी ज़ुबान मेरे तालू से चिपक गई। ज़बूर 69 उसकी 3री आयत में लिखा है, मैं चिल्लाते चिल्लाते थक गया, मेरा गला सूख गया। ज़बूर 69 की ही 21वीं आयत में लिखा है, उन्होंने मुझे खाने को अंदराइन दिया और मेरी प्यास बुझाने को सिरका पिलाया। याद रखें, रूमी सिपाहियों ने यीशु मसीह की प्यास को बुझाने के लिए उसे सिरका सरकंडे पर लगाकर पेश किया, और यीशु मसीह ने उस सिरके को पीना मुनासिब ना जाना, क्योंकि वो उसकी तकलीफ में और ज़्यादा इजाफे का, और ज़्यादा दुख और करब का सबब बनता। आज यीशु मसीह ना सलीब पर हैं और ना ही वो जिस्मानी प्यास महसूस कर रहे हैं, लेकिन एक प्यास आज भी उनकी ज़िंदगी में मौजूद है, एक तशनगी आज भी उनकी ज़िंदगी में है, और वो तशनगी जिन मिजाजी मायनों में हम इस बात को सीखते हैं आज के वक्त में, वो ये है कि खुदावंद यीशु चाहते हैं कि मैं और आप उसे सिरका की जगह पर अपनी मोहब्बत पेश करें। मैं और आप उस सरकंडे की जगह, जो शाही इख्तियार की जगह, उसकी बादशाही का तमस्कर उड़ाने के लिए उसे दिया गया, उसे पेश किया गया, जो सरकंडा, उस सरकंडे की जगह अपनी ज़िंदगियों में उसे हकीकी बादशाह जानते और मानते हुए
اسے اپنی زندگیوں میں ایک حقیقی بادشاہ کے طور پر اپنے دلوں پر اختیار اور راج کرنے کی توفیق، اسے اعزاز دیں، اسے یہ آنر دیں کہ وہ ہماری زندگیوں کا مالک اور بادشاہ بنے، اور اس سرکے کی جگہ اپنی محبت کو، جو خدا کا کلام کہتا ہے کہ اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت کریں، ایسا محبت کا مشروب اسے پیش کریں جو خداوند کو ہماری زندگیوں سے پسند آئے، اور جس کے سبب سے ہماری زندگیوں میں اس کے کفارے کی، اس کے دکھوں کی، اس کی تکلیف کی اور اس کی اس پیاس کی قدر کرتے ہوئے ہم اسے محبت کے ساتھ اپنا خالق، اپنا نجات دہندہ اور اپنا بادشاہ مانتے ہوئے اس کی ویلیو اور قدر کریں۔ آمین۔